So guys, today our new chapter is trigonometry. In fact, I'll be starting mathematics classes for class 10 students based on introduction to trigonometry. Maximum of the students are afraid of this chapter. उनको ये भूत सवार जैसा है कि ये चैप्टर ये बहुत मुश्किल है ये कुछ नहीं. It's one of the easiest chapters in class 10th mathematics and I can bet on this. So if we start in class 10th, there are two chapters based on trigonometry. First part is introduction to trigonometry and the second part is applications of trigonometry. So let's start our first lecture from the basics, introduction to trigonometry. If we see the word trigonometry, tri means three and gon means sides and metry means measurement. Now if we take the Greek word, it's trigonon means triangle and metron means measurement. So it's a study of relationship between angles and sides of a triangle. Between angles and sides of a triangle. अब हमारे पास यहाँ भी we know there are different kinds of triangles on the basis of sides or on the basis of angles. But in trigonometry, what we basically study is our case of study is right angle triangle. We know this is right angle. Now the game starts here. Now here are two angles, and we know their sum will be 90. Now let me name this triangle ABC. Now if I am saying in consideration is this angle, and if I again draw one more triangle and in consideration I take this angle ABC. Now we know if this angle is under consideration, we know already this is perpendicular, this is here also perpendicular. अगर हम यहाँ देखेंगे नीचे, इसके हिसाब से ये बेस है, शाबाश. अब इसके हिसाब से कौन सी बेस है? ये वाली बेस है. इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये है. हाइपोटेन्यूज दोनों केसेस में सेम रहेगा. Hypotenuse will be same in both the cases if we consider angle C or angle A. So now if we check here, I'll simplify for you. Here BC is perpendicular in this triangle, AB is base and AC is hypotenuse. Now from this, in this triangle if we check, here AB is perpendicular, AB is perpendicular, BC is base and AC is hypotenuse. So only two angles are there. Total the two angles which we have to deal, either A will be under consideration or C will be under consideration. Now as you all know, angle is denoted by word theta. Angle is denoted by word theta. Basically, we have six main trigonometric functions. We have six main trigonometric functions. Let me name those trigonometric functions. T functions. First is sine of theta, cos of theta, tan of theta, cosec of theta, sec of theta and cot of theta. While its full name is SINE, cosine, tangent, cosec, secant and cotangent. Now we have six trigonometric functions: 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Cos function has go actually sheaf functions. Cos function is sheaf functions. So how to remember what is the relationship? If I consider this angle, if in consideration I take this triangle which is here, इस ट्रायंगल को कंसीडर करूंगा तो मेरे पास जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है मैं इसके अकॉर्डिंग साइन के वैल्यूज निकालूंगा. तो मेरे पास एक सिंपल सी ट्रिक है पी बी पी एच एच बी. अगर किसी को निमोनिक्स में याद रखना है तो he will remember this thing. He will remember this thing. Now value of sine of A or sine of theta. It will be P from numerator and H from denominator. It means perpendicular divided by hypotenuse. Perpendicular divided by hypotenuse. So value of sine A will be, what is the perpendicular here?
it is BC, and what is the hypotenuse here? That is AC. Now similarly, what will be the value of cos of A गुबुरमियोन? Cos of A का वैल्यू होगा बेस, सगे AB, इसका शाबाश, न्यूमरेटर में बेस, डिनोमिनेटर में hypotenuse, that will be equal to, what is the base here? AB divided by hypotenuse we have AC, shabash. Now after this it is, we have tan theta. What we have? Tan theta. And tan theta is equal to perpendicular divided by base, P divided by B. Ithan kya chu gobur perpendicular should be C, and base kya chu? AB, shabash. Now let me show other three trigonometric functions. अगर हम tan देखेंगे आगे, tan is a function which can be written like this also. Tan of theta or tan of A here is sin of A divided by cos of A. वो सारा आपको तब समझ आएगा जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का टेबल बनाएंगे. अब हमारे पास इसके बाद cosec of A है. Cosec of A is either equal to hypotenuse divided by base, hypotenuse divided by base, शाबाश, गोबर समझ आओ इतना ही. Hypotenuse divided by base को hypotenuse को तक खींचे, AC divided by, sorry, hypotenuse divided by perpendicular, hypotenuse divided by perpendicular, and perpendicular is BC, perpendicular is, अगर तो यह है cosec पूछूं, cosec of A is inverse of sin of A, तालसा पूछिए में उल्ट, यावा AC to BC, so cosec of A is inverse of sin of A. In the same way, if what is another function, that is sec of A or sec of theta, sec of theta, sec of theta किसके बराबर है? या इसके इनवर्स या hypotenuse divided by base, h divided by b. तो if we check that, what will be that? What is hypotenuse here? Hypotenuse is AC, and what is base? Base is AB. आवा वो भी कोई उल्ट. वहीं वो लास्ट फंक्शन है cot of A, cot of A या cot of theta, चूज भी लेखन एंगल इन कंसीडरेशन was. So cot of A या तो इसका इनवर्स, इसका इनवर्स, या तो base divided by perpendicular. What is base here? It is AB, and what is perpendicular? It is BC. Or how to remember these trigonometric ratios or trigonometric functions? I'll give you an easiest way जिससे आपको सारी रिलेशनशिप जो भी इस चैप्टर में लगेंगी वो आपको आराम से, वो आप एक झटके में याद रख सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रा अ सुपर हेक्सागन और हेक्सागन आई विल ड्रा सिंपली हेक्सागन. आई विल ड्रा अ हेक्सागन. यह हेक्सागन अच्छी साइड छोटे पाई हेक्स, it's known as super hexagon in trigonometry. Super hexagon in trigonometry. Now you know there are 6 trigonometric functions: sine, cos, tan, cosec, sec and cot. इसमें से 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऐसी है जो C वर्ड से स्टार्ट होती हैं. तो उन C को मैं सबको एक ही साइड लिखूंगा. दिस इज cos, here I will write cot, and here I will write cosec. Here I will write cosec. फिर here I will write sin, here I will write tan, and अब हमारे पास कौन सी फंक्शन बची? That is sec. That is sec. देखो बच्चा, मैंने 6 वर्टिसेस पे या 6 कॉर्नर्स ऑफ दिस हेक्सागन मैंने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखी. आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे साइन, जो भी तीनों, फर्स्ट स्टेप यू रिमेंबर, यू विल ड्रा अ हेक्सागन. आप आराम से ये चीज समझो, पहले आप हेक्सागन बनाओगे, फिर जो भी सी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आती हैं, कॉस, कॉट और कोसेक, उनको आप तीनों को लिखोगे. फिर साइन, टैन और सेक, साइन, टैन और सेक. इसके बाद आप इसके सेंटर को ढूंढोगे. लेट इट बी वेयर ऑल द डायगोनल्स विल मीट, तो मैं बोलूंगा लेट इट बी है. तो उस जो आपका सेंटर होगा, सेंटर में आप 1 लिखोगे. क्या लिखोगे? तो फिर आप सब डायगोनल्स को मिलाओगे, सब डायगोनल्स को मिलाओगे आपस में. ये वाली डायगोनल, ये वाली डायगोनल, ये वाली डायगोनल मिली, और अगर इसको आगे लाएंगे तो ये वाली डायगोनल. सो नाउ इफ आई रोटेट क्लॉकवाइज, फर्स्ट thing is if I rotate clockwise. So on moving clockwise, अगर मैं clockwise चलूंगा, आप आराम से ध्यान रखो, यहां से अगर स्टार्ट करूंगा
यहां पहुंचूंगा, यहां से स्टार्ट करूंगा, यहां पहुंचूंगा, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां। योतान आवा समझ गो। अगर बह वन तेल tan थीटा कथु बराबर, tan थीटा थो नजर, tan थीटा इज इक्वल टू ये पत यम ज फंक्शन सा गई sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। आवा अम बगैर वन अगर वो sin थीटा का बराबर, ये सब के सब ऐसे निकल सकते हैं। sin थीटा को नेक्स्ट टू फंक्शंस आपको याद रखनी है। sin थीटा विल बी इक्वल टू cos थीटा डिवाइडेड बाय cot थीटा। आप अभी बोर्ड की तरफ देखो, आप बाद में लेक्चर नोट्स बना लेना, आप बाद में लेक्चर नोट्स बना लेना। अब अगर इसके बाद कॉट की तरफ आएंगे, इसकी तरफ आएंगे, सॉरी कॉस की तरफ, cos of theta will be equal to cot of theta divided by cosec theta, cot of theta divided by cosec of theta, so on and so forth. Now if I write trigonometric this, now we have cot of theta, cot of theta। चलो इसके बाद दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन सी है, एक तो cosec थीटा है और हमारे पास sec थीटा है, तो ये दो लिखी। अब इसी तरह अगर आप sec देखोगे, sec will be tan divided by sin, sec will be equal to tan थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। सो ये इस हेक्सागन से आपको एक फार्मूला निकली, अगर आप क्लॉकवाइज लिख लो, अगर आप क्लॉकवाइज चलोगे। अब दो चीजें हैं, जो डायगोनल्स पे एलिमेंट है, क्या है बच्चा, जो डायगोनल्स पे यहाँ पे एलिमेंट है, यम डायगोनल पे एलिमेंट यम छासन पानवई इनवर्स, क्या छासन पानवई इनवर्स। या हेकु तुम वनित अगर इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो वो 1 होगा, उसका प्रोडक्ट क्या होगा। सो यहाँ पे ट्रिक 2, एलिमेंट्स और ratios you will directly write, you will directly mention। अब यहां पे आपको एलिमेंट्स कंफ्यूज करेंगे, आप डायरेक्टली लिखोगे ratios along the diagonals, along the diagonals are inverse। क्या है, इनवर्स। तो मैं बोल सकता हूं इधर साइन के अलावा कौन सी डायगोनल है, कोसेक। सो साइन ऑफ ए इज इक्वल टू कोसेक ऑफ ए, साइन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 ओवर कोसेक ऑफ ए। ठीक, इनवर्स रिलेशनशिप गया ये है। अम पत क्या छु गोबर मियोन cos ऑफ ए या cos ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय sec ऑफ थीटा, sec ऑफ थीटा। अब यहां भी a लिखेंगे तो a ही लिख रहे हैं। अब इसके बाद आप देख रहे हो cos के बाद cot, cot का इनवर्स tan, cot ऑफ a इज इनवर्स ऑफ 1 ओवर tan ऑफ a। अगर इसके बाद देखोगे, इसके बाद cosec, तो cosec तो ऑलरेडी आया खुद sin का इनवर्स, तो cosec का इनवर्स होगा 1 ओवर sin ऑफ a। समझ आ रहा है यहां तक। अब अगर हम आगे देखेंगे, sec का इनवर्स cos, sec of a is inverse of 1 by cos of a, and then we have last one that is tan of a is equal to 1 over cot of a, 1 over cot of a। यहां तक समझ आया सबको बच्चा। अब यहां से हमें दो चीजें निकली। एक तो मैंने अभी तक आपको ये बोला कि अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हो, इफ यू आर मूविंग क्लॉकवाइज तो छु पकन के गड़ छु पकन, गड़ छु पकन, तम साथ क्या छु गसन, तम साथ छु ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आसन यम से नेक्स्ट जाक्सने tan छु अगर इथन गॉड स्टार्ट से tan पर कर ये छु साइनस तो cos के इनवर्स या यहुद रेशियो। वन अगर इफ कहीं पाई along diagonal which are tan inverse to cot, cot inverse to tan, sin inverse to cosec, cosec inverse to sin, cos inverse to sec, sec inverse to cos। यहां तक समझ आया। तो now let us derive the third part of this topic। पॉइंट नंबर 3 जो हमें इस चैप्टर में लगेगा, मैं इंट्रोडक्शन में सारी चीजें आपको इसी हेक्सागन से दिखाऊंगा। थर्ड थिंग व्हिच वी यूज इन द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक। किसी को याद नहीं रहती है वो आइडेंटिटीज, वो याद कैसे करेगा। मैं आपको बोल रहा हूं ये ट्रायंगल बनता है, इसमें कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गया एक ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल को आप इस पॉइंट से स्टार्ट करोगे,
आप बस अगर 1 से यहाँ स्टार्ट करोगे, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ट्रायंगल नंबर 4, ट्रायंगल नंबर 5, ट्रायंगल नंबर 6। आप बस ऑड ट्रायंगल्स को ले लो। किनको ले लो? ऑड ट्रायंगल्स को। क्या लिया आपने बच्चा? ऑड ट्रायंगल्स इन द सुपर हेक्सागन। फिर आप क्लॉकवाइज आ जाओ, देन यू कम क्लॉकवाइज। क्या आ जाओगे आप बच्चा? आप आओगे क्लॉकवाइज। तो आपके पास तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यहां पे आएंगी। अगर ये गॉडनिश क्या है? साइन, वन इज द साइन थीटा, तो वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta is equal to 1. This is your first trigonometric identity. This is your first trigonometric. अब इस वाले को छोड़ोगे आप, तो यहाँ पे तो cot है और यहाँ पे क्या है? tan। अच्छा, यही हेक्सागन वही है, हेक्सागन को मैंने चेंज नहीं किया। ये आपकी पहली आइडेंटिटी। सेकेंड आइडेंटिटी, इसको छोड़ोगे, अब आ जाओ यहाँ से, तो ये है ना आपका इवन ट्रायंगल। जो इवन ट्रायंगल को छोड़ोगे उसके बाद ऑड ट्रायंगल ये वाला है ना, तो मैं इवन नंबर्स को यहाँ पे मिटा ही दूंगा। तो अब आपका ट्रायंगल कंसीडरेशन में आपको एक के बाद ऑल्टरनेट एडजेसेंट लेना है, एक छोड़ना है, उसके बाद जो दूसरा वो लेना है। वो आठ अगर हम क्लॉकवाइज पकड़ो, ये वो 1 स्क्वायर को 1 अम पत प्लस cot स्क्वायर थीटा, शाबाश, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये गई दोयम आइडेंटिटी। याद थन कनस रोदन सुबह ये हेक्सागन सुथा ये पेट याद थयो नजर। ये पेट पे इथ कन, ये पेट पे इथ कन गो गॉडीएस, ये पातीएस, ये पातीएस, वन सीनियर द वन सीनियर अलाई। इसके बाद विल स्टार्ट इन दिस ट्रायंगल, यहां से आएगा यहां तक। तो यहां पहले अगर चलेगा यहां से यहां क्लॉकवाइज इनिशियल पॉइंट से, तो थर्ड आइडेंटिटी विल बी गोगल में ये तो इतरीम आइडेंटिटी है। सो simply tan स्क्वायर या ट्रायंगल या भी शेड कर। अगर मैं इनको शेड भी करूंगा, आप शेड से भी देख सकते हैं। ये वाली तीन ट्रायंगल्स को मैं कंसीडर करूंगा, ये I'm पक्के छु tan स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर, ये ट्रायंगल साथ ना वे आ इथन 1 3 में साथ सो बराबर इज इक्वल टू sec स्क्वायर। सो आपके पास यही तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। किसी को याद नहीं रहती है वो ऐसे याद रखेगा। अब गोटा भी याद नहीं रखता है। No need of ratification, no need of gotification. You have to directly use this hexagon, and in this hexagon you have to only remember I have to take one triangle and then one leave, then take another, but go clockwise from initial point. Sine, cos, इन दोनों का sum will be equal to this. The sum of these two will be equal to this. Sum of these two will be equal to the square of this. यहां तक समझ आ रहा है? अब और एक चीज लगता है यहां पे, लेकिन इनिशियली जो पिछले 2 सालों से 2023-24 के बैच है उनमें ये वाली चीज डिलीट हो गई है, लेकिन फिर भी मैं आपको सिखाऊंगा। अगर यही हेक्सागन में यहाँ पे बनाता हूँ, यही हेक्सागन में यहाँ पे बनाता हूँ, तो अभी मैं डायगोनल्स के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा हूँ, मैं ऐसे लिखूंगा। नाम तो यही है, यहाँ पे है कॉस, यहाँ पे है कॉट, यहाँ पे है कोसेक, यहाँ पे है कोसेक, यहाँ पे है साइन, यहाँ पे है टैन और यहाँ पे है सेक। नंबर 4 थिंग इज कंप्लीमेंट्री एंगल्स, दैट इज कंप्लीमेंट्री एंगल। साइन थीटा का अगर कंप्लीमेंट्री देखेंगे वो इसी लाइन के अलॉन्ग है, इसी वर्टिसेस के अलॉन्ग है। तो कंप्लीमेंट्री एंगल साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। शाबाश। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, या इसका उल्टा चलोगे cos 90 cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा। अब अगर दूसरा वाला देखूंगा मैं tan ऑफ थीटा, tan ऑफ थीटा, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा। शाबाश। एंड sec ऑफ थीटा इज इक्वल टू cosec of 90 minus theta. समझ आओ? Now after this only one point is left in introduction, that is trigonometric table. That I will give a full lecture on this, and then we will start textual exercise. Or first I'll finish the first exercise of this topic, and then I will go with the trigonometric table and so